Okay, good evening, everyone. And yes, a very good evening to all of you. Yes, Mutta, good evening. Shraddha, good evening. And all the students. Betsy ne kiya tha. Thank you, Sneha. Good evening. Sanika, good evening. Elroy. Yes, Mr. Advai. Yash, Aditya, Bhushan. Very good evening. Very good evening. How are you all? All good? Soham, hi. Nishita, good evening. Divya, good evening. Yes, Mugda. ये क्या था भाई सिटर आर्या ने कुछ लिखा है आई एम गुड ओमकार थैंक यू हाउ आर यू आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल एवरीवन इज एट होम एंड सेफ यस आई एम गुड भरत थैंक यू विशाल गुड इवनिंग प्रियंक गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू great yes Anuradha I am absolutely fine absolutely good with all the energy excellent work and I'm doing my work properly now I want all of you also to do your work properly. चलो वेरी गुड इवनिंग सर अनिल भाई ने सर ऐसे बोला कंडीशन मुंबई में बहुत बुरा है भाई सब जगह कंडीशन और हालात बहुत खराब है बहुत सारा पानी बारिश हवा एवरीथिंग ठीक है चलो नहीं मैं मुंबई में नहीं रहता हूँ आना जाना चालू रहता है ठीक है Okay, yes, Elroy, I will definitely take care. You guys also please do take care of yourself. Don't move out from the home unless it is necessary, unless it is mandatory, unless it is required. Otherwise, be there at your home. Wherever you are safe. Okay? To be safe and to survive is the motto of this year. Like it was last year, same this year. चलो, we'll start with our discussion. Last time हम लोगों ने discuss करना चालू किया था about a chapter that was the digestion and absorption, correct? और उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कहाँ तक पढ़ा था किसी को कुछ याद है क्या nobody remembers vitamin K तक yes perfect vitamin K तक हमारा हो गया था meaning we have completed fat soluble vitamin yes perfecto so we have completed the fat soluble vitamin and we need to start now with the water soluble vitamin चलो थोड़ा फोकस करते हैं concentrate करते हैं bring out all the energy which you have let's begin with this interesting topic I want to complete this today so that we can start with the human digestion yeah चलो सब लोगों ने चाय पी होगी आई होप चाय कॉफी जो भी आप लोग पीते हो दोपहर के टाइम पे आई होप एवरीवन हैड दैट पर्टिकुलर नाइस एनर्जेटिक ड्रिंक so let's begin with the next part of this topic that is the water soluble vitamin now as the name goes when we talk about this as water soluble vitamin meaning these are the vitamins which can get dissolved in water or which are soluble in water अभी इसमें दो ही आते हैं कौन कौन से सबसे पहला आता है that's called as the vitamin B complex and the second one is vitamin C तो यहाँ पे ये water soluble vitamin है which is like as I said last time मैंने बताया था vitamin B complex and vitamin C फैट सोल्यूबल तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं विटामिन ए डी ई एंड के सो वी रिमेंबर दैट एज अडेक और वी रिमेंबर दैट एज केड़ा तो लास्ट टाइम हम लोगों ने ये केड़ा पूरा पढ़ लिया विटामिन ए इज कॉल्ड एज व्हाट इज द अदर नेम फॉर विटामिन ए फटाफट बोलो जल्दी 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 द अदर नेम फॉर विटामिन ए स्टार्ट्स विद आर रेटिनॉल वेरी गुड retinol perfect retinol vitamin D start फटाफट फटाफट vitamin D starts with C very good advice calciferol अथर्व fantastic निशिता श्रद्धा भूषण lovely सफरा perfect ईशान perfect calciferol yes सोहम yes Elroy perfect calciferol what is the other name for vitamin E जल्दी बोलो tocopherol lovely अथर्व श्रद्धा अद्वय अरे लवली यस बेटा मैं यही बात कर रहा हूँ थोड़ा सा मैंने लोगों को घर पे रहने के लिए बोला था तो उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे यू आर ऑन टाइम सो यू हैव नॉट मिस्ड एनीथिंग ओके सो डोंट वरी ठीक है सो यहाँ पे हम लोग ई की रिकैप कर रहे हैं ऑफ द लास्ट लेक्चर विच वी डिड गुड सो बेसिकली दिस इज टोकोफेरा लवली एंड इशिता ने पहले ही बोल दिया विटामिन के का नाम फाइलोक्विनोन लवली फैंटास्टिक तो ये नाम याद रखो विटामिन ए इज रेटिनॉल विटामिन डी इज कैल्सिफेरॉल विटामिन ई इज टोकोफेरॉल एंड विटामिन के इज
Phylloquinone. Remember these names. MCQ में आपको इसके ऊपर questions आते हैं. So you have to remember this. Now, next important part which we are going to learn here is now the water soluble vitamin pattern हमारा same रहेगा. The chart which you need to prepare is going to remain the same. So we are going to take the scientific name. Which is the vitamin? What is its scientific name? Then उसके बाद आता है source, उसके बाद आता है functions और उसके बाद deficiency diseases and symptoms. तो ये 4 headings में हम लोग को सारे vitamins पढ़ने हैं. Yes अथर्व, सब जगह बारिश हो रही है बेटा. Don't worry. वो मुंबई हो, ठाणे हो, अंधेरी हो, नासिक हो, औरंगाबाद हो, everywhere there is rains. ठीक है, सब जगह rains ही rains है. So we all are sailing in the same boat now. चलो थोड़ा ध्यान दो इधर, यहाँ पे ध्यान दो. We are going to understand all these vitamins. तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन से इंपॉर्टेंट विटामिन है जो हम लोग पढ़ने वाले. सो उसमें से फर्स्ट आता है दैट इज B1, सेकंड वन इज B2, देन कम्स B3, फिर उसके बाद आएगा B6 एंड B12. ठीक है. अच्छा, B4, B5, B7, B8, B9, B10, B12, 11 ये विटामिन है, लेकिन आप लोगों को स्टडी में वो नहीं. जैसे अगर आप देखोगे तो आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में अभी भी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिजम्स में आपको कॉकरोच का स्टडी, अर्थवर्म का स्टडी और फ्रॉग का स्टडी है, बट अर्थवर्म एंड फ्रॉग इज नॉट देयर फॉर यू ऑल टू स्टडी. तो वो हम लोग नहीं पढ़ते हैं, तो हम लोग कॉकरोच पढ़ते हैं. वैसा ही ये है. ठीक है. सो विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, देन B6 एंड B12. डायरेक्ट जंप कर रहा है 6 का. ओके, 3 और 6 का. सो ऐसे ये हमारे 5 विटामिन से जो हम लोग को पढ़ने. चलो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन, दैट इज विटामिन B1. Vitamin B1 is also known as, the other name for vitamin B1 is thiamine. Sir, do you upload your lectures on YouTube? Because I have missed. I will ask somebody to upload my lectures on YouTube. Okay, don't worry. Let me just check. We will start adding my my work also on the same channel. अलग channel नहीं रखता हूँ मैं, मास्टर क्लास के चैनल पे हम लोग करेंगे. ठीक है. So don't worry. I'll do that. Anup, definitely. Okay, so B1, which is also called as the thiamine, the other name for B1 is the thiamine. Now, what are the sources? अब ये sources तो standard रहेंगे सब जगह. Yeast extracts, जैसे yeast से खाना बनता है, तो yeast ऐसे extract करके उसमें से B1 मिलता है. Then groundnut and unpolished rice, जिसको हम लोग brown rice बोलते हैं ना, so that is called as the unpolished rice. So that is the source of vitamin B1. तो उसमें से जो बाहर का जो छिलका रहता है राइस का, ब्राउन राइस बोलते हैं, तो उसका बाहर का जो लेयर होता है ना, दैट इज रिच इन B1. तो इसके लिए वो राइस भी बहुत सारे लोग खाते हैं. What are the functions of B1? सबसे पहला, it promotes the appetite. Now when I say promotes the appetite, meaning what? It helps in increasing the appetite. Appetite का मतलब आता है भूख लगना. ठीक है. जो हम लोग को भूख लगता है, या हम लोग बोलते हैं ना कि मुझे भूख लग रही है, so that is nothing but the appetite. Then it also promotes or helps in the growth and also helps in nerve function. Now what is the function of the nerve? तो आप लोग ऑलरेडी वो पढ़ रहे, ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्सेस. ठीक है. यस, रेड राइस द सेम. अनपॉलिश राइस जो होता है ना बेटा, दैट इज कॉल्ड एज द रेड राइस. ओके, वो अनपॉलिश रहता है, तो दैट इज रिच इन B1. एक्चुअली क्या होता है ना, राइस जब कल्टीवेट होता है ना, तो दैट टाइम इट इज अनपॉलिश्ड. फैक्ट्री में जाके उसको पॉलिश करके व्हाइट बना के फिर बेचा जाता है. मतलब उसका इनर सब्सटेंस है ना, दैट गेट्स एक्सपोज्ड एंड देन इट इज सोल्ड इन द मार्केट. So there are some people who like this brown rice या फिर red rice, and there are some people who like the white. जैसे हम लोग मैक्सिमम व्हाइट राइस ही खाते हैं, लेकिन ब्राउन राइस खाने वाले भी लोग होते हैं. Okay, so it is one and the same. Good. So nerve function, we all know what is the nerve function. Nerve function, as we survey आप लोगों को सिखा रहे शायद. So that is basically transmission of impulses from one region to another. So that is done with the help of vitamin B1. So what are the deficiency diseases? So loss of appetite, क्योंकि it promotes the appetite, तो B1 नहीं रहेगा तो there will be loss of appetite. तो patient का complaint रहेगा कि मुझे भूख नहीं लग रहा है. And then there will be swelling of the feet and legs. This condition जहाँ पे ये problems आना चालू होते हैं, that is known as beriberi. Thiamine is basically the major amino acid in the vitamin B1. That is why amino acid derivative है ना. So thiamine is the amino acid with the help of which B1 is synthesized. इसके लिए उसको thiamine ऐसा नाम दिया है. Okay, so thiamine is a name of the amino acid. Now the condition here is known as beriberi. So if a question is asked in the exam, very important from MCQ point of view,
नीट के लिए, सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, नीट एग्जाम के लिए very very, what is very very, it is nothing but the deficiency of vitamin B1. Basically thiamine is a type of amino acid, so that helps in synthesis of B1, इसके लिए उसका नाम thiamine दिया है, ठीक है। चलो, अच्छा, yes, very very can be cured, Shraddha, if you start providing proper vitamin B1 plus at the same time if you start treating the other causes, अगर उसके अलावा भी दूसरा कोई cause रहेगा, so that can be definitely treated. See basically कैसा है ना बच्चों, ये सब deficiency disorders, when I say deficiency disorder, अगर मुझे विटामिन B1 का deficiency है या फिर अगर मुझे विटामिन C का deficiency है, तो मुझे मेडिसिन और इंजेक्शन देके कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? एंटीबायोटिक्स देंगे तो मेरा विटामिन डेफिशिएंसी कम होने वाला है? नो। तो इसका मतलब मुझे क्या देना पड़ेगा? वी नीड टू प्रोवाइड दैट पेशेंट द नेसेसरी न्यूट्रिएंट इन विच देयर इज डेफिशिएंसी, करेक्ट? ठीक है, so basically that is how thiamine is also also a plant used in cooking. Thiamine, I don't know what is the other name for thiamine as a plant I'm talking about. Huh? I don't know. And they're saying thiamine is a also plant used in cooking. Yeah, no. Elephantiasis beta Shraddha is different. Huh? Here there is pitting edema. Elephantiasis में the leg starts becoming like an elephant, hard बन जाता है. ओके, हियर इट इज कॉल्ड एज स्पिटिंग इडिमा. अगर आप फोटोग्राफ में भी देखोगे ना, तो फोटोग्राफ में देखो यहाँ पे उसको हाथ लगाया ना तो यहाँ पे ऐसे खड्डा हो गया है, करेक्ट? सो इट इज कॉल्ड एज स्पिटिंग इडिमा. सर मुझे टेढ़ा देख रहा है. क्या टेढ़ा दिख रहा है भाई तुझे? विशाल को कुछ तो भी टेढ़ा दिख रहा है. चलो ठीक है. सर दैट आई एम नॉट अवेयर एज रेसिपी. अच्छा, ओके. लेट मी चेक बेटा अनन्या, आई विल चेक दैट. आई मीन ऐसा कोई होता है कि वेजिटेबल व्हिच इज यूज्ड फॉर एज अ रेसिपी. ओके, अभी दिख रहा है सर. गुड विशाल, थैंक यू. तो बेरी बेरी, अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डेफिशिएंसी ऑफ B1 डिसीज, दैट इज कॉल्ड एज दैट डिसीज इज नोन एज द बेरी बेरी. अभी ये याद रखो, हम लोगों ने बहुत पहले भी देखा है, जैसे विटामिन डी डेफिशिएंसी से जो बीमारी आती है उसको हमने क्या नाम दिया था? रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेसिया. वैसा भी B1 का है, ठीक है. सो B1 डेफिशिएंसी विल लीड टू अ कंडीशन कॉल्ड एज बेरी बेरी. ओके, अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद then comes the next important vitamin, that is vitamin B2. B2 is also called as riboflavin. The other name, the scientific name for B2 is riboflavin. See the sources, similar type of sources are there, जैसे yeast extract, groundnut, egg white, milk and meat. So these are all the sources. It is used as coriander is used. अच्छा, okay. चलो, रिसर्च कर रही है अनन्या कुछ तो भी थायमिन के प्लांट के ऊपर. अच्छा, फंक्शंस क्या थे इसके? फंक्शंस आर basically it makes the metabolism of carbohydrates and fats easy. So basically it supports the carbohydrate and fat metabolism, and if there is deficiency then there will be loss of weight. अभी loss of weight क्यों होगा? Because carbohydrate और fat का metabolism नहीं हो रहा, meaning the fat is not getting converted into fatty acids, so deposition of the fat is reduced, so naturally there will be loss of weight. कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज नहीं बन रहा है, तो एक्सेस ग्लूकोज से जो फैट बनता है तो वो नहीं बन रहा है, सो अगेन दैट विल लीड टू लॉस ऑफ वेट. अगेन एट द सेम टाइम देयर विल बी डायरिया. नाउ कैन एनीवन टेल मी व्हाई देयर विल बी डायरिया? जो इंफॉर्मेशन आपके सामने है उसको अप्लाई करके, वो नॉलेज को अप्लाई करके, कैन एनीवन टेल मी कि व्हाई देयर विल बी डायरिया? डायरिया पता है आपको क्या होता है? डायरिया मीनिंग लूज मोशंस. डायरिया का मतलब आता है लूज मोशंस. सो लेट मी see who is going to answer this. Anyone who can answer this question? Okay, metabolism ठीक से नहीं होता है because of indigestion, lack of metabolism. नहीं, ऐसा नहीं. Improper digestion, no, wrong. Loss of carbohydrate. तो उससे क्या होगा भाई अमन? Loss of carbohydrate है, बराबर है, तो होता क्या है उससे? Improper digestion नहीं. चलो, digestion मतलब there is something which is related to the digestion. नो, हाँ फनी है, आई अंडरस्टैंड प्रियंक, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. हाँ, सानिका इज ऑन राइट ट्रैक, वेरी गुड. एंजाइम्स, फैंटास्टिक सानिका. एंजाइम्स आर बेसिकली either they are made up of
कार्बोहाइड्रेट्स और दे आर मेड अप ऑफ फैट और दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो ऐसे एंजाइम से जो कार्बोहाइड्रेट और फैट से बनते हैं और जो एंजाइम मुझे डाइजेशन में काम में आते हैं, यही एंजाइम्स नहीं बन रहे। एंड इफ these enzymes are not synthesized naturally, there won't be any digestion. And if there is no digestion, then there will be diarrhea, जिसको हम लोग कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, इंडाइजेशन। ठीक है। अच्छा, अभी वैष्णवी ने क्या बोला था, कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स डज नॉट गेट डाइजेस्टेड वेल, देयरफॉर वाटर इज नॉट अब्सॉर्ब। या बेसिकली वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, उसकी वजह से एंजाइम सिंथेसाइज नहीं हो पा रहा है, बिकॉज एंजाइम का जो मेन इंग्रेडिएंट है दैट हैज टू बी अ कार्बोहाइड्रेट और अ फैट और अ प्रोटीन। करेक्ट। तो इसके लिए उनको हो जाएगा डायरिया। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस, सबको समझ में आ रहा है। देयर विल बी मेंटल कंफ्यूजन। व्हाई देयर विल बी मेंटल कंफ्यूजन? ऐसा क्यों होगा, मेंटल कंफ्यूजन क्यों रहेगा? ऐसा ये पेशेंट पगला जाएगा तो हम लोग बोलेंगे उसको कि पगला गए हो का? Why there will be mental confusion? No proper nutrition. Generalized मत दो answers थोड़ा specific. Why there will be mental confusion? अच्छा, is there anything trick to learn scientific? I'll tell you, Priyank. Don't worry. I'll tell you what are the tricks. अच्छा, मेंटल कंफ्यूजन इन द सेंस कि थोड़ा सा कंफ्यूज रहेगा, थोड़ा सा डिसोरिएंटेड रहेगा, समझ में नहीं आएगा। एक क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका कुछ अलग ही आंसर आएगा, या फिर थोड़ा सा स्लो रहता है आंसर करने में। तो ये क्यों हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट से मुझे क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से मुझे मिलता है ग्लूकोज। ग्लूकोज मुझे क्यों चाहिए? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एंड लेट मी टेल यू, out of the entire glucose which is present in our body, almost 25 to 30% of the glucose is taken up by the brain. अभी यहाँ पे ग्लूकोज ही कम है तो ब्रेन का एक्टिविटी तो डल हो जाएगा ना, और ब्रेन का एक्टिविटी डल हो गया तो देयर विल बी मेंटल कंफ्यूजन। तो ऐसा ये रीजंस आते हैं। एंड प्लस देयर विल बी रफ स्किन ऑन द फेस, नेक एंड हैंड्स। अभी रफ स्किन क्यों होता है? बिकॉज फैट मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है ना, सो देयर इज लॉस ऑफ फैट। तो लॉस ऑफ फैट की वजह से ये तकलीफ होगी। सी, एवरी सिम्टम हैज अ रीजन कि ऐसा क्यों होता है। करेक्ट। तो आप लोगों को ना ये ध्यान में आना चाहिए कि यार ये ऐसा कैसा हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये प्रॉब्लम। अभी जैसे आपने अगर गलती से बता दिया कि मुझे बहुत लूज मोशन का कभी कभी बीच में प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं मेरा लॉस ऑफ वेट हो रहा है, या फिर पता नहीं थोड़ा सा स्किन मुझे ड्राई लग रहा है, तो ऐसा सब आप बोलना जब पेशेंट को, डॉक्टर को चालू करेंगे, तो नेचुरली यू विल स्टार्ट थिंकिंग कि इज देयर अ डेफिशिएंसी और सम अदर कॉज। So we need to find out the cause. Is it necessary that all symptoms are same? No, not necessary that every symptom will be same, but few of the symptoms which are supported by the kind of diet. हम लोगों को फिर उनको डाइट पूछना पड़ेगा, आप खाना ठीक से खा रहे हो क्या, बराबर जा रहा है कि नहीं खाना, क्या खा रहे हो, तो उसमें से ये प्रॉब्लम हो सकता है। सो लेट्स चेक द ब्लड लेवल्स। तो हम ब्लड चेक कर सकते हैं विटामिन B2 के लिए। ब्लड चेक करेंगे तो पता चलेगा कि विटामिन डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी है तो विटामिन B2 देना चालू करो, या फिर विटामिन B कॉम्प्लेक्स देना चालू करो। सिंपल। तो डॉक्टर भी एकदम ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, डॉक्टर को ये सब चीजें पता होती है, इसके लिए वो बराबर वैसे ही क्वेश्चन आप लोगों को पूछता है एज अ पेशेंट। ओके, चलो। तो ये तो हो गया हमारा विटामिन B2। आई होप एवरीवन इज राइटिंग दिस डाउन। सब लोगों को ये लिखना पड़ेगा। सर, व्हाट इज द मेन सिम्टम ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ B2? दीज आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ B2। उसमें से लॉस ऑफ वेट इज द मेन सिम्टम। ओके, चलो, वेरी गुड। सब लोग लिख रहे हैं ना? इफ अ पर्सन हैज B2 deficiency, so he will have all no, not necessarily all symptoms, but some of them will be there. दिव्या, rough skin is basically because there is no fat ना, फैट का डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, so amount of fat present in our body is low. बाप रे, my voice is cutting. Is my voice cutting? Can you show the previous slide? Yeah, दिखाता हूँ। Is my voice cutting? मेरा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है? हाँ, ओके, गुड। Yes कि no? I am getting confused. ब्रेक हो रहा है मेरा वॉइस? अच्छा, it was lagging earlier, now it's okay. Okay, fine, fine, fine. No problem, no problem, no problem. Thank you, thank you, thank you, thank you. Okay, चलो। तो बेसिकली रफ स्किन इज बिकॉज देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ फैट। अभी ये क्या क्वेश्चन है भाई, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन क्यों डालते हो यार? सर, इज इट पॉसिबल दैट मल्टीपल सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी, डिफरेंट विटामिन डेफिशिएंसी कैन बी सीन इन अ पेशेंट? नो, इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। बट विटामिन B कॉम्प्लेक्स का डेफिशिएंसी
हो सकता है पूरा, यानी विटामिन B2, विटामिन B1 या फिर B3 का डेफिशिएंसी इज पॉसिबल टुगेदर, लेकिन सबका जनरली ऐसे होता नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, प्रैक्टिकली वो नहीं होता है। चलो, somebody wanted to see the last slides, I'm showing you this last slide so you can see this. किसको चाहिए था लास्ट स्लाइड, प्लीज चेक दिस। या हृदय को चाहिए था, हृदय मोदी। So Hriday has written, I hope she has written this. Done, Hriday? Hriday, yes. It's Riddhi. अच्छा, sorry. I'm so sorry. Done. चलो, good. ये पॉइंट सब लोग लिख रहे हैं टेबल के फॉर्म में, जैसे मैंने बताया था वैसा लिख रहे हैं। इन केस ऑफ माल न्यूट्रिशन विल द पर्सन सफर फ्रॉम ऑल, यस ऑफ कोर्स बेटा, डिपेंड्स कौन से टाइप का माल न्यूट्रिशन है। दो टाइप होते हैं ना, वन इज कॉल्ड एज मेरास्मस एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज क्वाशिओर्कर। अगर मेरास्मस रहेगा तो इट इज डेफिशिएंसी ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स, एंड इफ इट इज क्वाशिओर्कर देन इट्स डेफिशिएंसी ऑफ ओनली प्रोटीन्स। ओके, तो सिर्फ प्रोटीन का डेफिशिएंसी रहेगा तो सिम्टम्स थोड़े अलग आएंगे, सारे न्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी होगा तो सिम्टम्स अलग आएंगे। सो दैट कंडीशन इज नोन एज मेरास्मस। ओके, आखिरी में मैं दिखाता हूं आपको फोटोग्राफ्स, इंटरेस्टिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड इज विटामिन B3। विटामिन B3 इज ऑल्सो कॉल्ड एज नियासिन। ओके, व्हाट आर दी सोर्सेस? मिल्क, होल ग्रेन्स, सारे पूरा जो ग्रेन रहते हैं वो हम लोग खाते हैं। देन एग्स, नट्स, मीट एंड लीवर। लीवर जिसको कलेजी बोला जाता है, so that we eat, so that is the source of B3. What are the functions? Oxidation of carbohydrates and protein. Oxidation of carbohydrate मतलब क्या हो रहा है? Can anyone tell me what is happening here? Oxidation of carbohydrate मतलब, बोलो भाई, एनर्जी प्रोडक्शन। वेरी गुड, अगवा ने आंसर दिया, एनर्जी प्रोडक्शन। श्रद्धा, गेन ऑफ O2, नो बच्चा। श्रद्धा, ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब ऑक्सीजन इज गेटिंग यूटिलाइज्ड, so there is mechanism where there is breakdown of glucose takes place in the presence of oxygen, तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस और ब्रेकडाउन जब होता है तो उससे क्या होता है, उससे ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से हम लोगों को मिलेगा energy, so we are going to get the energy. Perfect, perfect, Sanika, very good, and we'll get energy, ATP production will be there. Good. Ishita has understood this. So basically it helps in what? It helps in oxidation of carbohydrates as well as the protein. So if there is deficiency, then there is this condition called as pellagra. Now you can see जो photograph में दिखाया गया है, that's an extreme condition. It will not start like this. It will start with a simple symptom or a condition called as dermatitis. Now remember children, in future for entire life of years, any word if it ends with itis, I-T-I-S, any word if it ends with itis, meaning it has to do with the infection. Okay, itis का मतलब आता है infection. Conjunctivitis, infection of conjunctiva. Dermatitis, derma meaning skin, so infection of skin. Pharyngitis, infection of the pharynx. Tracheitis, infection of the trachea. Bronchitis, infection of the bronchi. So basically any word if it ends with itis, meaning it has to do something with the infection of. तो पेशेंट को सबसे पहले क्या कंप्लेंट चालू हो जाएगा? डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस मतलब क्या? हाँ, हेपेटाइटिस। वेरी गुड इशिता। हेपेट का मतलब लीवर, आइटिस मतलब इन्फेक्शन। सो व्हाट इज हेपेटाइटिस? इन्फेक्शन ऑफ लीवर। वेरी गुड। कोलाइटिस, इन्फेक्शन ऑफ कोलॉन। This digestion and absorption processes are completed. This class is of disease related to digestion. ये क्यों ऐसा डिक्लेयर कर रहे हो कि पूछ रहे हो? डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो शुरू करना है आपको। Okay, sir, what is the difference between allergy and infection? Yeah, Priyank, I'll tell you what is the difference between allergy and infection. Allergy basically is the initial response of the body to a particular allergen which enters in our body, whereas infection is because of certain pathogen. एलर्जीज डिपेंड, स्किन के ऊपर एलर्जी होता है तो साइंस एंड सिम्टम्स अलग आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का एलर्जी होता है तो साइंस एंड सिम्टम्स विल बी डिफरेंट, बट द बेसिक डिफरेंस इन एलर्जी, देयर विल नॉट बी एनी फीवर। एलर्जी में फीवर आता नहीं है, इन्फेक्शन में फीवर आता है। करेक्ट?
एंड एलर्जीज ये प्रॉब्लम ऐसा होता है कि वंस यू गेट एलर्जिक टू एनी पर्टिकुलर सब्सटेंस देन इट विल रिमेन थ्रू आउट लाइफ, मीनिंग इट कैन नॉट बी ट्रीटेड. सर्टन केसेस में ट्रीट हो सकता है, अदरवाइज वो ट्रीट होता नहीं है. इन्फेक्शन कैन बी ट्रीट, बट मेजर डिफरेंस विल बी इन्फेक्शन मीनिंग देयर इज फीवर, एलर्जी मतलब देयर इज नो फीवर. ठीक है. चलो उसके बाद आता है कंडीशन कॉल्ड एज डिमेंशिया. डिमेंशिया का मतलब आता है मेंटल कंफ्यूजन बिकॉज ऑफ द मेंटल कंफ्यूजन इज बिकॉज बेसिकली बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ मेमोरी. तो मेमोरी का थोड़ा सा लॉस रहता है इसमें, तो उसकी वजह से या फिर कंफ्यूजनल स्टेट्स होते हैं, सो दैट इज नोन एज डिमेंशिया. ओके. और डिमेंशिया के बाद आता है डायरिया. सो बेसिकली पेलाग्रा कैन बी आइडेंटिफाइड बाय 3D. And what are these 3Ds? The 3Ds are dermatitis, dementia, and diarrhea. Okay, so these are the 3Ds, and this the condition is known as pellagra. तो यहाँ पे जो फोटोग्राफ में दिखाया गया है वो एक्सट्रीम कंडीशन है. स्टार्ट्स विद डर्माटाइटिस. हम लोग डर्माटाइटिस करके उसको ट्रीट करते हैं, बट एक्चुअली द कॉज इज विटामिन B3 deficiency. So once we start providing B3, then this condition will be normal. Again, the patient will come normal. Okay, so this is how scientific, this is how vitamin B3 can be understood. Please write this down. Those who have written, those who have not written, please write it down. जिन्होंने लिखा है वो थोड़ा सा रिवाइज करें. चलो लिखो फटाफट, और होने के बाद डन ऐसा बोल दो या कुछ तो लिखो. ओके. ठीक है. ठीक है. ओके. चलो डन डन डन. रॉय सिंह डन. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. या usually it affects the hands beta Ananya. Generally it can affect on the all the bodies but it affects the hands. Dermatitis का मीनिंग आता है डर्मा. अभी डर्माटाइटिस है ना, तो यहाँ पे ये डर्मा जो है ना, डर्मा मतलब स्किन, और आइटिस का मीनिंग आता है इन्फेक्शन. सो डर्माटाइटिस इज बेसिकली इन्फेक्शन ऑफ द स्किन. गुड सफरा. चलो आगे बढ़ते हैं. So this is your vitamin B3. Then comes vitamin B6, which is also known as pyridoxine. Sources देख लो इसका. मिल्क होता है, whole grains होते हैं, pulses, nuts, fruits, veggies. Veggies यानी vegetables. So it acts as a coenzyme in metabolic processes. Now this is very important. B6 has a major role. जैसे for example, we have an enzyme. Okay, जैसे there is an enzyme called as pepsin, which is present in the stomach and helpful for the digestion of proteins. But this pepsin will work only in the presence of B6. So B6 will act as a coenzyme. Okay, I had a call, so my voice was not there. Can you all hear me now? Okay. So I'll show you. गायत्री, just give me a minute. I'll show you the last slide. So अभी ध्यान दो इधर. चलो ठीक है. समझा 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 समझा. अभी मत टाइप करो. Pepsin, suppose this is an enzyme. So this enzyme will work best in the presence of B6. So B6 will act as a coenzyme. मतलब वो क्या करता है? Support करता है in a chemical reaction. A very important use of this enzyme. तो naturally अगर ये B6 का deficiency रहेगा, then the person will suffer from conditions like anemia and the skin lesions. तो अगर आप हाथ के ऊपर देखोगे तो कैसे स्किन के ऐसे छोटे छोटे लीजन्स आना चालू हो गया. सर it only support, no no no, it supports many of the enzyme. I have given only one example. ठीक है. Many other enzymes are also basically where B6. सॉरी यार, एक कोई तो भी बार बार कॉल कर रहा है, इसके लिए आई हैड टू अटेंड.
yes, आ गया मैं वापस. One parent was calling me, so I had to take this particular call. Sorry. चलो, अभी audible? Yes. Am I audible to all of you? Okay. चलो good. तो ये हो गया आपका condition. So basically metabolic processes में this will act as a coenzyme and then this will help in. अरे ये कौन है रे? Audio 8132030513. ये कैसा नाम है? I can see there is one person with a name as Audio 8132030513. How do we pronounce this? Yes. Please rename yourself. Yeah, I'll tell you, Aman. Wait. Audio. अच्छा, ममता, आप प्लीज अपना रीनेम कर लो ना बेटा. ऑडियो 8132 ऐसा आ रहा है ना, तो समझ में नहीं आता है. अरे हो ना अमन, वेट, आई एम टेलिंग यू. चलो, basically, B6 will be called as a pyridoxine because again, because of the kind of amino acid which it contains, plus it helps in this coenzyme activity, which is almost a sort of redox reaction. That is reduction and oxidation reaction. So on that basis, basically pyridoxine as a name is given to this particular vitamin B6. Anemia क्या होता है? Can anyone tell me what is anemia? ये किसका मिया है anemia? What is anemia according to you? Weakness is anemia. Lol. Wrong. Blood disease. Wrong. Pale skin. Wrong. Scarcity of the blood. Wrong. Sickle cell anemia. कहाँ चले गए sickle cell anemia में पूछ रहा? Causes anemia. Ishita, what is anemia? Skin disease. Lack of RBCs. Okay, somebody saying lack of RBCs. Deficiency of iron. Somebody is saying. तुम लोग है ना, रुको, सब लोग रुको. All are kaddus and guggus. You all are telling me the cause of anemia. I am asking you what is anemia. या तो आप लोग कॉज बोल रहे हो या फिर सिम्टम बोल रहे हो. मुझे आप लोग ये नहीं बोल रहे हो कि एनीमिया क्या होता है. डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट? सानिका, डेफिशिएंसी ऑफ, हाँ, आदित्य ने अभी जाके का आंसर दिया, हीमोग्लोबिन. वेरी गुड. गौरव ने भी अभी आंसर दिया, हीमोग्लोबिन. तो हीमोग्लोबिन काउंट हमारा कम हो जाता है. So that condition is called as anemia. अभी hemoglobin HAEMO, Priyan, HIMO नहीं, it is HAEMO. Now, when we talk about hemoglobin, it is made up of two parts. Na? One is the heme and the other one is globin. One is the heme and the other one is globin. And globin is a type of protein. और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये it is acting as a coenzyme for metabolic activity. So naturally the kind of protein which is required for hemoglobin formation may not be produced in our body. So that will lead to this deficiency. And plus there are skin lesions. Skin lesions मतलब skin के ऊपर patches आते हैं red color के. Then there will be lot of scratching on those patches and all. तो ये सब तकलीफें होना चालू हो जाता है. प्रियंक ने हाथ ऊपर उठाया. You want to say something बेटा? Priyank, you have raised your hand. Priyank Savle, are you feeling bored? चलो निकल गया. अच्छा सर, नॉर्मल पर्सन का हीमोग्लोबिन कितना होता है? अच्छा, मेल में हीमोग्लोबिन परसेंटेज मेल और फीमेल में थोड़ा अलग है अमन. मेल में इट इज फ्रॉम 13 to 16 milligrams per DL, that is the unit. और फीमेल में इट इज इन द रेंज ऑफ 11 to 14 milligram per DL. करेक्ट. तो ऐसा ये हीमोग्लोबिन काउंट होता है. यस सानिका, 13.5 इज अ गुड. अगर आपका रहेगा 13.5, so it's a good hemoglobin count. Okay, what happens when hemoglobin level exceeds? Hemoglobin level सफरा will never exceed. कभी भी exceed होता नहीं है. And if it exceeds, then there will be clumping of the RBCs. Clumping of the RBCs यानी सारे RBCs एक जगह ऐसे जमा होना चालू हो जाएंगे and then they will start blocking the capillaries and arterioles. So that will never happen. And if it happens, then there will be this condition. So the person will die. मर जाएगा. If hemoglobin goes down, then there is a condition called as anemia. ये जो मैंने अभी आपको दिया है. और बहुत ही ज्यादा यानी 4 या 5 तक अगर hemoglobin गया, so that can lead to heart failure. हार्ट अटैक तो नहीं, लेकिन हार्ट फेलियर के चांसेस होते हैं.
करेक्ट, सो द हार्ट फंक्शनिंग विल गेट अफेक्टेड। चलो ये हो गया लिख के आपका। नो सर, हाउ कैन वी सी ऑन आर बॉडी? नहीं, हम लोग बॉडी के ऊपर देख सकते हैं तो कैसे देख सकते हैं? तो पेल स्किन रहेगा, आंखों के नीचे जो रेड रहता है वो एकदम पेल रहेगा, वीकनेस आएगा, देन ओवरऑल खाने की इच्छा यानी भूख नहीं लगता है, फिर लॉस ऑफ वेट चालू हो जाता है। सो दिस आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ हीमोग्लोबिन एनीमिया। Difference between heart failure and heart attack is heart failure मतलब complete stoppage of the heart activity. Heart attack is basically the blockage, the temporary condition where a particular part of the heart is affected but the functioning is not completely affected. So that's called as heart attack. And heart failure का मतलब होता है complete stoppage. So cardiac arrest जिसको हम लोग बोलते हैं वो. So this is known as heart failure. चलो, अमूल is saying done writing. आगे बढ़ते हैं. Next one, the last one which we are going to learn here is vitamin B12. B12 also known as cyanocobalamin. Again, a type of amino acids on the basis of which the name is given as cyanocobalamin. Blockage of arteries is due to, yes, one of the reason Aditya for blockage of arteries is cholesterol. ठीक है? Yes, Gayatri, this slide you want? लिखो. So I am still waiting. Please write it down. अच्छा, उससे पहले वाला? This one? हो गया गायत्री? Okay, chalo. So B12 also called as cyanocobalamin. आदित्य, मैंने आपका आंसर दिया, ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज वाला कैन बी बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल, वन ऑफ द रीजन. ठीक है, या ऑल्सो मोर अमाउंट ऑफ फैट, सो दैट इज हाउ द फैट विल बी कन्वर्टेड इनटू कोलेस्ट्रॉल, सो दैट विल लीड टू दिस. ओके, सोर्सेस, व्हाट आर द सोर्सेस? तो सबसे पहला सोर्स ऑफ कोर्स विल बी मिल्क, देन मीट, सीरियल्स, pulses, liver, etc. So these are all the sources of cyanocobalamin or vitamin B12. Function: maintains normal RBC function. What is the RBC function? RBC का काम क्या होता है? To transport the gases, that is oxygen and carbon dioxide. So that is the work done by the RBC. And if this normal functioning is not taking place, why? Because the RBC's size and shape will change. And change in size and shape of the RBC will lead to deficiency of the RBCs called as pernicious anemia. तो यहाँ पे प्रॉपर आरबीसी काउंट जो होता है ना, आरबीसी, एक मिनट है बच्चों, ओके, तो यहाँ पे ये जो प्रॉपर आरबीसी काउंट जो रहता है ना, दिस आरबीसी काउंट हियर विल रिड्यूस. नॉर्मल एनीमिया जो पहले हमने पढ़ा उसमें शायद आरबीसी काउंट कम ना हो, लेकिन इसमें 100% आरबीसी काउंट कम होता है. क्यों? बिकॉज द सेल्स आरबीसीज हियर आर large sized, and as the RBCs are large sized, meaning जब वो produce होते हैं bone marrow में, bone के अंदर, so they are already large sized, so they are not released in the blood, and because they are not released in the blood, so there will be deficiency of RBC. So this condition is known as pernicious anemia. Okay, indirectly it keeps the neurons active. Yeah, Ananya, it will definitely keep the neurons active, ना? न्यूरॉन्स को भी वही चाहिए रहता है, कैल्शियम चाहिए रहता है, मैग्नीशियम चाहिए रहता है, ग्लूकोज चाहिए रहता है फॉर इट्स फंक्शनिंग. सो नेचुरली इट विल रिमेन एक्टिव. ठीक है, तो यहाँ पे ये आरबीसी का ये छोटा सा इंपॉर्टेंट कंडीशन, दैट इज नोन एज पर्निशियस एनीमिया. पर्निशियस का मीनिंग आता है लार्ज साइज्ड आरबीसीज. यस बच्चा, प्रियंक, अब इसके लिए ट्रीटमेंट क्या होगा? सो यू हैव टू प्रोवाइड देम विटामिन B12. तो B12 के इंजेक्शन आते हैं, तो वो अगर आप दोगे तो द पर्सन विल बी नॉर्मल. yes, it can cause memory loss as well, as and when required. ठीक है, तो memory loss भी हो सकता है. चलो नेक्स्ट, आरबीसी काउंट बेटा 17 कम हो गया, तो आरबीसी कंटेन्स व्हाट? आरबीसी कंटेन्स हीमोग्लोबिन. तो अगर आरबीसी काउंट कम है तो नेचुरली हीमोग्लोबिन काउंट भी कम हो गया. एंड इफ द हीमोग्लोबिन काउंट इज लेस, सो नेचुरली व्हाट विल बी द इफेक्ट? द अमाउंट ऑफ oxygen which is carried in our body is also less, and if the oxygen carried in our body is less, so oxidation will not take place, and if there is no oxidation, so there will be no energy production, and if there is no energy production, then there will be weakness. तो ये सब linked है ना एक दूसरे के साथ, करेक्ट? ये सब में लीवर लिखा है, सो लीवर इज वेरी इंपॉर्टेंट.
लीवर का मतलब आता है कलेजी, जिसको हम लोग नॉनवेज खाते हैं ना लोग, तो उनको पता रहेगा, कलेजी बोलते हैं उसको, तो वो आपको पता रहेगा. सो इट इज बेसिकली a very rich source of all these nutrients. So I'm not getting how vitamins are responsible for memory loss. Shraddha, memory loss is one of the important function, may not be necessarily seen in uh, all the vitamins, लेकिन कुछ विटामिन में हमने देखा था, जैसे डिमेंशिया, तो वहां पे लॉस ऑफ मेमोरी इसके लिए हो रहा है, एंड इट्स अ टेम्पररी फेज. हाँ, लॉस ऑफ मेमोरी मतलब पिछला सब भूल गए, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, ऐसा वाला नहीं. दैट इज नॉट अ टाइप ऑफ लॉस ऑफ मेमोरी. लेकिन अभी मैंने जस्ट कुछ काम बोला आपको, और थोड़ी देर बाद मैंने पूछा कि क्या रे काम किया गया, अरे ये मैं भूल गया, सॉरी सॉरी. वापस थोड़ी देर बाद पूछोगे क्या रे क्या हुआ, आपने काम किया, कौन सा काम, तो फिर आप बोलोगे अरे नहीं क्या मैंने तुझे बताया था वो वाला काम, अरे हाँ अरे अरे अरे. सो दैट टाइप ऑफ लॉस ऑफ मेमोरी, ऐसा वाला. ठीक है श्रद्धा. नॉट दैट कि मुझे पहचानते नहीं हो, मम्मी डैडी को ही नहीं पहचाना, डैडी को बोल रहे अंकल तुम क्या कर रहे हो मेरे घर में, कौन हो तुम, मम्मी को बोल रहे हो कि ये आंटी क्या कर रहे इधर, मेरे घर से निकल जाओ, ऐसा वाला नहीं. नॉट दैट टाइप ऑफ मेमोरी. ठीक है. नॉट लाइक कोमा. यस, कोमा इज अनकॉन्शियसनेस बेटा. कोमा में अनकॉन्शियसनेस होता है सर, वो तो ऐसे आई नो हृदय, रिद्धि बोल रहे वो तो ऐसे ही होता है, तो वही तो रिद्धि, हमारा प्रॉब्लम ही वो है, हमारा खाना ही इतना बकवास है वैसे देखा जाए तो, वे वी ईट, तो हम लोगों को ये सब प्रॉब्लम्स तो आते ही है. सो बेसिकली देर आर चांसेस ऑफ सच डेफिशिएंसीज बट वी डोंट नो, देखना पड़ेगा आपको. ठीक है. No, Alzheimer's is completely different disease, Ananya. Alzheimer's is basically old age disorder where there is degeneration of the neurons. Yeah, Alzheimer is basically degeneration of neurons. One dementia is a symptom. ठीक है मुग्धा, इट्स अ सिम्टम एंड अल्जाइमर इज अ डिसीज. सो ऑफ कोर्स अल्जाइमर का एक सिम्टम कैन बी डिमेंशिया ऑल्सो. ठीक है. हाँ, डिमेंशिया में 7 स्टेजेस यानी उससे भी ज्यादा होते हैं. ठीक है, तो वो ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट. है ना, गूगल पे सर्च करके सब लोग पूछते हैं सवाल फिर. Alzheimer's cannot be treated. Yes, Alzheimer's cannot be treated because Alzheimer is a old age disorder. Okay, and it's there is degeneration of the neuron, तो इसके लिए हम लोग उसको ट्रीट कर सकते नहीं है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. Let us move ahead now and let us try and understand the next part. अच्छा, अभी हम लोगों ने इतने सारे डिसीजेस और ये सब पढ़ लिया, यानी डेफिशिएंसीज और ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है. ठीक है, एक मिनट ना, चलो. Okay, I can see there is one member who's not attending the lectures. Mugdha might be knowing this. Mugdha, if you are from that school, Tisha करके एक है, Tisha. Just check ना, she is not attending lectures. Last lecture भी उसने नहीं किया था मेरा, अभी भी नहीं है. I don't know. Yes, please. Thank you. चलो आगे बढ़ते हैं. Let's move ahead. So we have seen all these vitamin B wala pura part. Now the next important part, the last vitamin which we have is the vitamin C, also known as the ascorbic acid. That is because of the kind of content it has. ठीक है. So इसका source क्या रहेगा, तो जितने भी citrus fruits है ना, they are basically acidic in nature. ठीक है. So citrus fruits, so orange, lemon, tomato, guava, mango, green vegetables, these are mainly citrus fruits is a source of the vitamin C. Orange होता है, lemon होता है, so this is a major source. Tomato is another important source. Green vegetables is another important source of vitamin C. What is the function? Maintains the capillaries. हमारे जो blood vessels होते हैं, smallest thinnest blood vessels called as the capillaries, so it helps and maintains the capillaries. Then helps in proper development of the bones and teeth and other tissues. So it is basically a add-on effect. मतलब ऐसा नहीं है कि विटामिन सी डेफिशिएंसी हो गया तो बोन का डेवलपमेंट नहीं होगा, टीथ गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता है. बट इट डेफिनेटली सपोर्ट्स द ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बोन्स. सो सपोज इसका डेफिशिएंसी अगर होता है तो देन देयर इज एन इंपॉर्टेंट डिसीज एंड दैट डिसीज इज नोन एज स्कर्वी. अभी स्कर्वी है क्या? हाउ स्कर्वी कैन बी आइडेंटिफाइड? स्कर्वी कैन बी सिंपली आइडेंटिफाइड बाय ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स. ठीक है. सो हेमरेज का मतलब आता है, हेमरेज का मीनिंग आता है ब्लीडिंग. ओके. नॉर्मली जब हम लोग ब्रश करते हैं, जब हम लोग टीथ का ब्रश करते हैं, तो उस टाइम पे ब्लीडिंग होता नहीं है. लेकिन ये कंडीशन में जब आप ब्रश करोगे तो ब्रश जैसे ही रब होता है गम्स के ऊपर, then the blood will start coming up. That is a typical sign of vitamin C deficiency.
सोचने का भी नहीं कि मुझे स्कर्वी है कि नहीं, पहले देखता हूँ फिर मैं कुछ करूंगा। डायरेक्ट ये विटामिन सी के सोर्सेस सबसे ज्यादा खाना चालू कर दो एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर. Okay, so there will be weakness, of course, and weakness is a generalized symptom, may not be very specific, but most important is hemorrhage of the gum. माउथ और गम्स में से हेमरेज फ्रॉम द गम. तो ये फोटोग्राफ भी अगर आप देखोगे ना तो उसमें आपको दिखाई देगा कि गम से ब्लीडिंग हो रहा है. सो दिस कंडीशन इज नोन एज स्कर्वी. तो ऐसे अलग अलग कंडीशन है जो वाटर सोल्यूबल विटामिन से हम लोगों को होता है. तो स्कर्वी होता है. सो स्कर्वी बेसिकली इज बिकॉज ऑफ विटामिन सी. बेरी बेरी इज बेसिकली बिकॉज ऑफ बेरी बेरी किसकी वजह से होता है? विटामिन, जल्दी बोलो. बेरी बेरी डिसीज इज बिकॉज ऑफ विटामिन B1. वेरी गुड, विटामिन B1. उसके बाद पेलाग्रा. पेलाग्रा इज बेसिकली बिकॉज ऑफ पेलाग्रा B3. सानिका, B3 से होता है ना पेलाग्रा. वेरी गुड. और एंड देन स्कर्वी, द वन व्हिच वी हैव सीन राइट नाउ. ठीक है, सो दैट इज अ कंडीशन कॉल्ड एज स्कर्वी. पर्निशियस एनीमिया इज बिकॉज ऑफ विटामिन B12. सो B12 causes pernicious anemia. चलो आगे बढ़ते हैं. छोटे से कुछ क्वेश्चंस है, मेरे ख्याल से एमसीक्यूज रहेंगे. सर B1 की स्लाइड दिखाओ ना प्लीज. बाप रे, गायत्री B1 पे गई. गायत्री 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 गायत्री, कितना पीछे लेके गए बेटा तू मुझे. ये ले. C will give energy also. Yes, you are right. Vitamin C is known to provide us energy because it helps in that biochemical reaction during ATP synthesis. हो गया गायत्री. ये B2. अनन्या, व्हाट विल बी द काउंट ऑफ आरबीसी ऑफ नॉर्मल पर्सन? मैंने बताया ना अभी. अच्छा, आरबीसी काउंट रेंज में आता है 5.5 मिलियन से लेकर रादर 5.15 टू 5.5 इस तरीके से होता है. एंड 6.5 इज द हाईएस्ट इन केस ऑफ मेल. ठीक है. चलो सर, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड. स्टिल आई एम थिंकिंग व्हाट टू चूज, मैथ्स और बायो. दीपाली, दीपाली आप बाद में मुझे फोन करो, फिर मैं बोलता हूँ आपको कि क्या करना है. ठीक है. विटामिन सी इज इंपॉर्टेंट इन कोरोना. नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है. नॉट नेसेसरी. लोग बोलते हैं विटामिन सी खाओ, बेसिकली इट इज क्या है ना, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है ऐसा बोला जाता है, इसके लिए विटामिन सी खाते हैं. बट यू नीड टू ईट ऑल दैट विच इज रिच इन मिनरल्स. वो अगर आप खाओगे तो आपका कोरोना भी भाग जाए. ठीक है. वो सपोर्टिव काम करता है. इट मे नॉट रिड्यूस द डिसीज. ट्रीटमेंट नहीं है वो. इट इज जस्ट टू मेंटेन योर हेल्थ. स्लाइड ऑफ विटामिन बी. कौन सा विटामिन बी बेटा नीरज? Sir, which is more effective, eating source of vitamins or taking vitamin pills? विटामिन पिल्स नहीं लेने का. ग्रीन लीफी वेजिटेबल, रिद्धि. उसके बाद नॉन वेज में लीवर, या फिर एग वाइट, मिल्क. दिस आर ऑल द टिपिकल. और पल्सेस, सीरियल्स एंड पल्सेस, ये टिपिकल होता है. तो ये सोर्सेस में हमारे आना ही चाहिए. हमेशा वही वही खाने का नहीं. पिल्स विल ऑफ कोर्स डैमेज द लीवर आल्सो, कैन लीड टू लिवर ट्रबल. चलो आगे. Yes, anybody wants to say anything? I could hear somebody's mic was getting on. Okay, चलो हो गया. सर B12 की भी पिल्स होती है ना? नहीं, वो एक्चुअली कंबाइंड रहता है. B12 का इंजेक्शन आता है. पिल्स से ज्यादा इंजेक्शन दिया जाता है B12 का. ठीक है. सर क्वेश्चन विल आस्क लाइक विच डिसीजेस एक्ट फॉर विच. हाँ, डिसीजेस का नाम आएगा, विटामिन के नाम रहेंगे. ऑप्शन में ऐसा जरूरी नहीं कि विटामिन B1, B2, B3, B12 ऐसा ही रहेगा. B1, B2 या फिर साइनोकोबालामिन, राइबोफ्लेविन, ऐसे नाम भी होते हैं. यानी मिक्स एंड मैच आता है ऑप्शन में. या फिर उल्टा, दिस विटामिन B12 कॉजेज सो एंड सो डिसीज, तो नीचे डिसीज का भी रहेगा. ओके, कैन बी गिवन बट जनरली इंजेक्शन इज प्रिफर्ड, ऐसा होता है. ठीक है अनन्या. बट B12 का पिल्स भी दे सकते हैं. उसमें कॉम्प्लेक्स ज्यादा रहता है B12 में. कॉम्प्लेक्स यानी बी कॉम्प्लेक्स जैसा होता है टैबलेट. ओके, सो ये हो गया हमारा पूरा विटामिन. कुछ क्वेश्चंस है, उसके आंसर आपको देना है.
Just keep yourself ready. Which among the following is not a water soluble vitamin? Question is not a water soluble. Yes, mouth ulcers are because of deficiency. Correct. Can be because of deficiency of vitamin B. बी की डेफिशिएंसी से हो सकता है, तो बी कॉम्प्लेक्स लिया जाता है. सबसे पहला, विच इज नॉट अ वाटर सोल्यूबल विटामिन? ऑप्शन ए सी, बी ई, सी बी वन एंड डी एस्कॉर्बिक एसिड. विच वन इज नॉट द वाटर सोल्यूबल? वेरी, बी क्यों लिख रहे हैं? अच्छा, वाटर सोल्यूबल. विच वन इज नॉट अ वाटर सोल्यूबल? वेरी गुड. सी होता है क्या? नहीं. करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज बी. या परफेक्ट. आंसर इज बी. Because C is ascorbic acid, B1 and ascorbic acid, C और ascorbic acid same ही है. B1 is basically B complex वाला vitamin. So they all three are water soluble. Only, okay, no problem. Yes, Mugdha, thank you very much, beta. Okay, thank you. Great. Next question. The deficiency of B1 causes. Deficiency of B1 causes rickets, pellagra, beriberi, pernicious anemia. जल्दी बोलो. अरे बाप, कितना फास्ट, एकदम धड़ा 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 धड़ा. सी ऑप्शन किसी ने सी लिखा. करेक्ट, सी और बेरी बेरी. परफेक्ट 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 परफेक्ट. यस, प्रियंक बी नहीं बेटा, पेलाग्रा इज बाद में आएगा, जाने दो. अभी क्वेश्चन में आया तो वापस मेरा आंसर आ जाएगा पहले. आई विल नॉट डिस्कस एंड डिस्क्लोज. चलो, दीपाली करेक्ट, बी. सी, third option. The other name of vitamin E is, what is the other name for vitamin E? Tocopherol, phyloquinone, ascorbic acid, calciferol. Very good. सब लोग फटाफट फटाफट आंसर दे रहे. ए. Nice. Perfect, perfect, perfect. Adadvay, perfect. Bhakta. Yes, 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 yes. Aman, Bhakti, correct. So answer is tocopherol. Fourth question, the pellagra, a skin disease, is caused by deficiency of vitamin. किससे होता है? देखा, आ गया क्वेश्चन, इसलिए मैंने ऊपर आंसर नहीं दिया. Pellagra is caused because of B1, because of B12, because of K, because of B3. Very good. Correct answer is D. Option D is correct. Answer is B3. Perfect. Last question. Yes, Anvay. Perfect. Dipali, perfect. B3, B3, B3. Yes. D. Correct answer, Ishan. Last question. Retinol is vitamin D, vitamin E, vitamin A, vitamin C. What is the correct option? Correct option is C. Correct. Perfect, 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 perfect. Yes. किसी ने गलत किया था. Elroy, perfect. Ishita, perfect, perfect, perfect. Ananya, right. Yes, perfect, perfect. Sakura, good. Perfect. So vitamin A is known as the retinol. ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं. So you just need to remember that vitamin, their scientific name and the disease caused by it. ठीक है, so even if you can remember this much, that is enough. चलो, next, last but not the least is the roughage. रफेज जो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्यूलोजिक डाइट. सो दैट इज आल्सो इसेंशियल. तो रफेज होता किधर है? ठीक है, सो बेसिकली इट्स अ कोर्स अनडाइजेस्टिबल मैटर ऑफ द फूड. तो ऑरेंज जब आप लोग खाते हैं ना, ऑरेंज, तो ऑरेंज जब हम लोग छीलते हैं, उसको निकालते हैं, तो उसके अंदर से छोटे छोटे जो पीसेस निकलते हैं, उसके ऊपर बहुत सारा व्हाइट कलर का थ्रेड्स होता है. हम लोग है ना, उसको पूरा ऐसा क्लीन करके एक एक थ्रेड निकाल के पूरा एकदम टकला बना के उसको खाते. प्लीज डोंट डू दैट. वो जो व्हाइट कलर का जो थ्रेड्स होता है ना, दैट इज द रफेज विच इज इंपॉर्टेंट. यू हैव टू ईट दैट आल्सो. बहुत सारे बच्चों को ना, वो खाया तो ऐसा करके ऐसे वॉमिटिंग जैसा सेंसेशन होता है ना. सो प्लीज डोंट डू दैट. हाँ, तो पूरा पूरा खा जाने का, सिर्फ बाहर का छिलका नहीं खाने का, बाकी सब खा जाने का. एंटायर अंदर का पूरा स्लाइस खा जाने का. ठीक है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट. सो इट कंसिस्ट मेनली ऑफ सेल्यूलोजिक फाइबर्स ऑफ द ग्रीन वेजिस. अब ये फाइबर्स का काम क्या होता है? Why these fibers are necessary? These fibers are necessary for binding the undigested waste. Undigested waste को ये bind करेगा and then will help in easy release of the undigested waste by the process called as defecation or egestion. तो उसके लिए yes, correct Safara. It helps in digestion. Yes, Bhakti, perfect. Ananya, perfect. Roughage gives bulk to food. राइट. अगर ये नहीं रहेगा हमारे खाने में, तो अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो है, वो रिलीज होने में तकलीफ होता है. And if there is trouble in release of undigested waste, then we call this condition as
constipation. So as you can see here, तो constipation होता है. So basically it prevents the constipation. Now what is constipation? It's a condition where the person will pass the undigested waste once in 2 or 3 days. Correct? So it provides that bulk for satisfying the appetite. यानी bulk heaviness आता है उससे, and plus stimulates the peristalsis. Peristalsis मतलब rhythmic contraction and relaxation. और मेरा contraction और relaxation अगर proper रहेगा, so waste material can be released out easily. But if there is deficiency, then there will be constipation. ठीक है? So that is how the condition will be produced. So constipation का one of the reason is lack of water. Another reason is lack of roughage in the diet. आदित्य को चाहिए last slide. Okay आदित्य, ये वाला, ये क्या लिखेगा भाई? I'm on constipated face. Yeah, that is what is being shown here. हो गया आदित्य? Okay. यानी चेहरा ऐसे दिखता है जैसे पेट साफ नहीं हो रहा, मुग्धा है ना, पॉटी बाहर नहीं निकल रहा है, तो ऐसा चेहरा ऐसा आड़ा टेढ़ा होना चालू हो जाता है ना, तो इसके लिए उसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेटेड फेस. लेकिन मतलब जोर लगा रहे लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं रहा है. सो दैट इज कॉन्स्टिपेटेड लुक. ओके, मुक्ता इज लाफिंग. चलो डन. सो ये हो गया हमारा रफेज. अभी लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इज द बैलेंस डाइट, जिसके बारे में बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे. आई विल जस्ट रन थ्रू दिस, नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, बट एज एन इंफॉर्मेशन यू शुड नो दिस. प्रियंक को लास्ट स्लाइड चाहिए. ये देख प्रियंक, प्रियंक को शायद ये कॉन्स्टिपेटेड लुक पसंद आया, इसके लिए बार बार वो मुझे बोल रहा है सर कॉन्स्टिपेटेड लुक. हो गया? डन प्रियंक? प्रियंक इज सेइंग एस. चलो बैलेंस डाइट क्या होता है? सिंपल है ना. व्हाट इज बैलेंस डाइट? द डाइट विच इज इन अ बैलेंस्ड अमाउंट, which is helpful for the normal like functioning of the body. So shall we write about? No, you may not write about the balance diet, just keep this information with you. अभी क्या होता है ना, बैलेंस डाइट इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ वर्क विच यू आर डूइंग. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका सेडेंटरी वर्क होता है, आराम से एक जगह बैठो और काम करो, दैट टाइप ऑफ वर्क दे है. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं, जैसे रोड साइड पे जो काम करने वाले लोग होते हैं ना, द वन हु इज एक्चुअली लाइक कैरिंग द ब्रेक्स, कैरिंग द स्टोन्स, ब्रेकिंग द स्टोन्स, सो दैट्स अ हेवी वर्क. तो उनका डाइट अलग रहेगा. कुछ लोग ऐसे होते हैं उनका मिक्स एंड मैच होता है, यानी थोड़ा सेडेंटरी थोड़ा हेवी, सो उनका डाइट अलग रहेगा. सो द बैलेंस डाइट कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं? इट कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ वर्क विच यू आर डूइंग. So suppose if it's a heavy work, then it requires lot of carbohydrates and proteins. If it is more of a sedentary, then it will require carbohydrate and no fat. Heavy work में आपने अगर fat भी खाया तो भी चलता है. Lot of fat is also essential because it will provide them the energy, secondary energy. ठीक है? So the diet having nutrients in abundant amount, adequate amount. So the nutrients are present in an adequate amount plus in proper proportion. So the diet having nutrients in adequate amount and proper proportion is called as a balanced diet. Okay, so a diet which has all nutrients. Perfect. Another diet which contains all the nutrients. Sir, what is meant by serving in this pyramid? Serving 6 or more servings, मतलब 6 या 6 से ज्यादा लोगों को सर्व करने वाला ये डाइट. 3 to 5 servings vegetables, 2 to 3 servings. ठीक है, अल्कोहल लेने का नहीं, और लेते हो तो यानी एडिक्ट होने का नहीं, तो आप लोग तो ले ही नहीं सकते, चॉइस ही नहीं है. 2 to 3 servings, 2 to 4 servings. तो यानी कितना होना चाहिए, फ्रूट कितने होने चाहिए हमारे बॉडी के अंदर, फ्रूट कितना हम लोगों ने खाना चाहिए, मीट कितना खाना चाहिए, तो वो उसका वो ओवरऑल. एक्चुअली ये पिरामिड है ना, हाफ वे है, आधा अधूरा है. इसमें ना ये सब ग्राम्स में दिया हुआ रहता है कि मीट इतना ग्राम, सो इतना इतना ग्राम इतने सर्विंग्स करेगा, वेजिटेबल इतने इतने ग्राम, सो इतना सर्व करेगा. इस तरीके से वो मीनिंग है. तो वो आधा है, इसके लिए वो आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है. ठीक है, चलो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स. तो उसमें से सबसे पहला, इट शुड हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ कैलोरीज. तो मुझे कैलोरीज किस में से मिलेगा? सबसे ज्यादा कैलोरीज मुझे कौन से डाइट से मिलेगा? द डाइट विच इज रिच इन
नो बच्चा लोग, कार्बोहाइड्रेट्स, वेरी गुड, नॉट फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इज द प्राइमरी सोर्स। तो जो भी एनर्जी बनता है कार्बोहाइड्रेट से बनेगा। सो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो सी इन योर डाइट यू शुड हैव 60% कार्बोहाइड्रेट। लेकिन जो खाते उसमें से हम लोग को ऑलरेडी कितना मिल रहा है? वी आर ऑलरेडी गेटिंग ऑलमोस्ट 85%। करेक्ट। तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। सो 60% कार्बोहाइड्रेट, 20% प्रोटीन्स एंड 20%। So this should be your diet content. So this is known as balanced diet. So vitamins and fresh fruits, butter, green leafy vegetables on a regular basis. Mineral element में the diet should be rich in calcium, sodium, and iron. So are we supposed to write this current slide? No, you may not write this. You can take the screenshot also. Sir, why alcohol is included in balanced diet pyramid? Shraddha is saying alcohol included क्यों है? Because see, basically alcohol in another way can also help in the normal process of digestion. But as I said, alcohol is a type of beverage which acts as a stimulant. ठीक है, तो वो लीवर फंक्शन को थोड़ा स्टिमुलेट करता है, डाइजेस्टिव फंक्शन को स्टिमुलेट करता है, लेकिन उसका एडिक्शन नहीं होना चाहिए। तो अल्कोहल वंस इन अ वाइल एज अ सोशल ड्रिंक इज एक्सेप्टेबल, लेकिन अल्कोहल एज एन एडिक्शन इज नॉट एक्सेप्टेबल। यस, रिद्धि सिंह, ब्रांडी, यस ब्रांडी लिया जाता है कोल्ड में। क्यों लेते हैं पता है ब्रांडी? क्योंकि ब्रांडी से बॉडी का हीट बढ़ता है, इसके लिए। ठीक है, चलो। तो ये मिनरल एलिमेंट्स होने चाहिए एंड ऑफ कोर्स एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो ये सब तो आपको जो भी खाना खाओगे ना उसमें से मिलने ही वाला। यस, परफेक्ट, इट इंक्रीजेस द हीट। ओके, कैल्शियम, सोडियम, आयरन, ये सब आपको मिलने ही वाले। लीफी वेजिटेबल खाते हो तो उसमें से सारे मिनरल्स तो एज इट इज यू गोइंग टू गेट, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। सो दिस इज हाउ द बैलेंस डाइट कैन बी मेंटेन। इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रखो जस्ट एज एन इंफॉर्मेशन। टेक द स्क्रीनशॉट। It is not the alcohol which will cure the kidney stone, beta Ananya. It is basically the beer. क्योंकि बियर क्या होता है ना, बियर बेसिकली ड्राइज अप योर टिश्यूज, मतलब बियर टेक्स आउट लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम योर बॉडी। तो वाटर का प्रेशर किडनीज के ऊपर इतना ज्यादा होता है दैट द फिल्ट्रेशन विल इंक्रीज। फिल्ट्रेशन बढ़ता है तो रिलीज ऑफ वाटर थ्रू द किडनीज विल इंक्रीज। एंड इफ दैट प्रोसेस इंक्रीजेस देन देयर आर चांसेस दैट द किडनी स्टोन कैन बी रिमूव्ड। एक्सपल्शन के लिए काम में आता है। सिर्फ विटामिन का और मिनरल्स का परसेंटेज क्या होगा? दे आर ऑलवेज रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज इन ट्रेसेस। मेजर इज दिस, so you can consider maybe 5 to 10%, not even more, not even more than this। 10 भी बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अभी हम लोगों को चालू करना है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है, दैट इज नथिंग बट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, so let us now start with this interesting part of the topic, that is the human digestive system. Now, as we all know, और आप लोगों ने ये already पढ़ा है, that this is the entire human digestive system, and this digestive system is basically divided into two parts. कौन-कौन सा part आता है? So the first part of this digestive system is known as alimentary canal, and the second one is called as the digestive glands. Okay. Now, why we call them as digestive glands? Because these are the glands which are going to secrete the digestive juice or the enzymes which helps in the process of digestion. So the gland releasing digestive enzymes, therefore called as the digestive gland. So what is digestive system? It's a system which is made up of alimentary canal and digestive glands. So what is the alimentary canal? It's a long and muscular tube of varying diameters. Starts from the mouth and ends with the anus. So that is called as the alimentary canal. And the average length of the alimentary canal in adults is going to be 8 to 10 meters or almost 24 to 30 feet. मतलब किसी एडल्ट का पूरा एलिमेंट्री कैनाल अगर आपने बाहर निकाल दिया तो आपको आपके बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर पे जाना पड़ेगा। वहां से जब आप एलिमेंट्री कैनाल को नीचे छोड़ोगे तो वो फ्लोर को टच करेगा। दैट इज द हाइट, क्योंकि एक फ्लोर का नॉर्मल हाइट रहता है 9 to 10 फीट, और ये एलिमेंट्री कैनाल का हाइट कितना है? ऑलमोस्ट 30 फीट, यानी 3 स्टोरीड बिल्डिंग। करने का नहीं,
किसी का भी एलिमेंट्री कैनाल बाहर निकालो मत, उसको बिल्डिंग के बाहर लटकाओ मत, लोग डर के मारे मर जाएंगे। प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम, नॉट फॉर यू ऑल एंड नॉट फॉर एनीवन। गुड। तो ये हो गया हमारा एलिमेंट्री कैनाल। तो देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल है क्या। एज आई सेड नो, एलिमेंट्री कैनाल, our body is extremely complex but at the same time extremely interesting also, प्रियन। ठीक है, देखते हैं क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें हम लोग को मिलने वाली है। सर कैसे अपनी हाइट में आई नो बुशरा, हाइट्स मैक्सिमम 6 फीट, तेरा कहाँ 6 फीट है? 6 फीट तो मेरा है, तू तो उससे भी छोटी है ना। लेकिन फिर ये कॉइल्ड फॉर्म में रहेगा ना, एक्सटेंसिव कॉइलिंग। ये देखो ना कितना कॉइलिंग 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 हो गया, यहाँ पे भी इसका शेप बदल गया, इधर इसका शेप बदल गया, तो इसको बोलते हैं एक्सटेंसिव कॉइलिंग। तो उससे ये इतना कम जगह पे फिट हो जाता है। So what is alimentary canal? It's a long and muscular tube of varying diameters. ठीक है, प्रियंका हाइट 6 फीट 3 इंचेस। बाप रे प्रियंक, इतना लंबा है तू, मिलना पड़ेगा तुझे एक बार। चलो, इट स्टार्ट्स विथ व्हाट? इट स्टार्ट्स विथ द माउथ, सबसे पहला ऑर्गन। माउथ के बाद देन कम्स द फेरिंग्स, बट रिमेंबर चिल्ड्रन, फेरिंग्स इज अ कॉमन ट्रैक्ट फॉर बोथ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। बट डाइजेस्टिव सिस्टम कंटिन्यू कहां से होता है? इट कंटिन्यूज विद द अनदर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड एज द esophagus. Esophagus then continues with the stomach. Stomach then continues with the small intestine. Then it continues with the large intestine. Then it continues with the rectum and finally anus. अभी देखो यहाँ पे ना हमने लीवर के बारे में कुछ देखा है, ना हम लोगों ने पैनक्रियाज इसमें इंक्लूड किया, ना हम लोगों ने गॉल ब्लैडर इंक्लूड किया। मतलब दिस इज एलिमेंट्री कैनाल विदाउट द ग्लैंड्स। सो लीवर पैनक्रियाज ये मेरे लिए क्या हो गया? दीज आर कॉल्ड एज द डाइजेस्टिव। So if anybody asks what is alimentary canal, so alimentary canal is basically a long muscular tube, very important, of varying diameter, and it starts with mouth and ends with anus. Correct? So this is called as the alimentary canal. So बचा कौन है? लीवर। फिर कौन बचा है? पैनक्रियाज। फिर कौन बचा है? सलाइवरी ग्लैंड। तो ये सब क्या है? तो ये मेरे लिए बन गया डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, सो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मिलकर फिर बनेगा आपका एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। तो हम लोग थोड़ा सा साथ में पढ़ने वाले, लेकिन अभी देखो मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सुन लो। अभी हम लोग ये पूरा चालू करेंगे। आई स्टार्ट विद द एलिमेंट्री कैनाल, साइमल्टेनियसली आई एम गोइंग टू टीच यू द ग्लैंड्स, बट आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू द पैथोलॉजी, यानी सॉरी you can say histology of the glands. Histology of the glands will be studied separately, उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ओके, हिस्टोलॉजी मतलब इंटरनल। गॉल ब्लैडर इज नॉट अ ग्लैंड, गॉल ब्लैडर इज अ स्ट्रक्चर विच स्टोर्स बाइल। तो ये स्टोरेज ऑर्गन है। ओके, इसके लिए उसको ग्लैंड करके कंसिडर नहीं करते हम। तो हम लोग पूरा एलिमेंट्री कैनाल पढ़ेंगे, उसके साथ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी साथ में पढ़ेंगे, लेकिन हिस्टोलॉजी सबका अलग से। हिस्टोलॉजी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल दीज पार्ट्स वी आर गोइंग टू स्टडी लेटर, अलग से पढ़ेंगे। एंड देन फॉलोड बाय केमिकल डाइजेशन, दैट इज फिजियोलॉजी। सो विल स्टार्ट फर्स्ट विद द माउथ। सो व्हाट इज माउथ? हम लोग को हमेशा कंफ्यूजन होता है, हम लोग ऐसा मुंह फाड़ के आ करते और बोलते कि ये माउथ है। But remember, that is not called as the mouth. That is called as buccal cavity or oral cavity. तो माउथ क्या है? बेटसी, तो माउथ में और बकल कैविटी में डिफरेंस है। सो व्हाट इज माउथ? इट इज द अपर मोस्ट ट्रांसवर्स स्लिट लाइक ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो ये जो है ना, ये ट्रांसवर्स स्लिट लाइक ओपनिंग है ना, ऐसा और ऐसा। करेक्ट, तो ये ट्रांसवर्स स्लिट लाइक ओपनिंग है। हमारा माउथ ऐसा है क्या? नहीं, हमारा माउथ इस तरीके से है। सो इट इज बेसिकली अ ट्रांसवर्स स्लिट लाइक ओपनिंग। ओके, और इसका लाइनिंग क्या रहेगा? फिर ये स्लिट लाइक ओपनिंग का लाइनिंग क्या रहेगा? सो इट विल हैव द लाइनिंग ऑफ द अपर लिप एंड लोअर लिप। YouTube पे अभी तो नहीं है, बट दे विल स्टार्ट लोडिंग इट ग्रेजुअली, सो यू विल गेट द आइडिया। ओके, सो यस यस, यू हैव टू राइट। हाँ बुशरा, अभी वापस नोट्स लिखना चालू कर दो।
So basically mouth is nothing but a transverse slit like opening having upper lip and lower lip, lined by upper lip and lower lip. And this mouth then opens where? This mouth then continues and opens inside a cavity called as buccal cavity. तो आ करके जो माउथ के अंदर जो अपने को दिखता है ना, दैट इज कॉल्ड एज द बकल कैविटी. सर सिर्फ बायो के ही लेक्चर? हाँ हाँ अनन्या, आई विल मेक इट अ पॉइंट दैट इट विल कम देयर ऑन द यूट्यूब ऑल्सो. ठीक है, डोंट वरी, आई विल टॉक. So basically, this is called as the buccal cavity. So what is mouth? It's a uppermost transverse slit-like opening of alimentary canal lined by upper lip and lower lip and opens inside as a buccal cavity. Correct? So now I'm not interested in this mouth, but I'm interested in buccal cavity. तो चलो माउथ के बकल कैविटी के अंदर घुसकर देखते हैं थ्रू द माउथ. व्हाट वी ऑब्जर्व, तो ऐसा मुंह फाड़ के अगर हम लोगों ने देखा, सो दिस आर ऑल द स्ट्रक्चर्स व्हिच वी ऑब्जर्व इनसाइड द बकल कैविटी. तो क्या क्या मिलता है? मेजरली वी आर गोइंग टू गेट द टीथ. वी विल ऑब्जर्व the structure which is the floor called as the tongue, and then there is a roof called as palate. तो ये तीन मेजर स्ट्रक्चर्स हम लोगों को दिखेंगे. मधुरानी को चाहिए लास्ट स्लाइड, अनन्या को चाहिए लास्ट स्लाइड, ये लास्ट स्लाइड. हो गया? मधुरानी, अनन्या, डन बेटा? ओके चल. तो ये हो गया हमारा माउथ. तो माउथ के तीन मेजर स्ट्रक्चर्स कौन कौन से? ऐसा मुंह फाड़ के देखो सब लोग, अपना अपना मुंह देखना, एक दूसरे का मत देखो. तो सबसे पहले दिखेगा टीथ, फिर दिखेगा टंग, फिर दिखेगा पैलेट, और अंदर ना ऐसा बड़ा मुंह किया ना तो ऐसा घंटी जैसा कुछ तो भी दिखता है टंगा हुआ. तो ये जो रहता है ना, दिस इज बेल लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज यूव्यूला. ठीक है, द प्रोनाउंसिएशन इज यूव्यूला. प्रियंक थोड़ा अपने अपने क्वेश्चंस को कंट्रोल करो, कंट्रोल योर इमोशंस. टॉन्सिल्स के बारे में बताता हूँ, पहले ये पढ़ लेते हैं, नहीं तो वापस टॉपिक कहीं का कहीं चला जाएगा. प्रियंक बाद में वापस मुझे याद दिलाना. ओके, वंस द माउथ cavity ends and when we enter in the pharynx. Okay, अच्छा, uvula is also called as, yeah, it's like a palate होता है, तो उसका फंक्शन भी बोलता हूँ. यस करेक्ट श्रद्धा, विलियम पैलेटाइन. ओके, नाउ सोहम को लास्ट स्लाइड देख, ये लास्ट स्लाइड है बेटा. डन सोहम? सर द येलो स्टक इन द टॉन्सिल्स, वो तो फैट डिपोजिशन है या फिर इन्फेक्शन की वजह से जमा हो गया, पस है. पस बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन इज येलोइश. ओके चलो. नाउ बकल कैविटी में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, ऐसे तीन स्ट्रक्चर्स है. कौन कौन से? सबसे पहला स्ट्रक्चर आता है टीथ, उसके बाद आता है पैलेट, उसके बाद आता है टंग. लेकिन हम लोगों ने ये एक चीज ऑब्जर्व की है, जस्ट अबव द अपर लिप, अपर लिप के ऊपर ना एक छोटा सा ऐसा डिप्रेशन आता है, and this small depression is known as philtrum. Very very important part, that is called as the philtrum. MCQ point of view say again going to be important for the need. So a small depression which is present just above the upper lip and below the nose is known as philtrum. Okay, sir, are we going to study test? Yes, of course, Bhushan, sab padna hai, tension mat le. Now, in most of the mammals, it is a narrow group that may carry moisture. तो यहाँ पे moisture carry होता है. हम लोगों के यहाँ पे moisture carry होता है क्या? पसीना आना अलग, moisture carry होना is different. Human beings में it does not carry moisture. यहाँ पे moisture होता नहीं है. So where it is found, so it acts as a wet nose pad in is which is able to trap the odor particles. तो ये कहाँ पे ज्यादा जरूरी होगा? कौन से एनिमल्स पे सबसे ज्यादा जरूरी होगा? So this is usually essential for developing and increasing the olfactory sensation, sense of olfaction. And which are the animals where sense of olfaction is strong? Like for example, cats and dogs. Lovely.
तो डॉग और कैट में ये फिल्ट्रम इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप बोलोगे सर इतना प्रोमिनेंट तो दिखता नहीं है। यस, प्रोमिनेंट दिखता नहीं है लेकिन होता है। हम लोगों में प्रोमिनेंट है लेकिन हम लोगों में इसका कोई यूज होता नहीं है। सो इट इज बेसिकली वेस्टिजियल इन केस ऑफ ह्यूमन। हमारे लिए इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा ऑर्डर सेंस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस फिल्ट्रम। नीदर वी रिक्वायर वेट नोज पैच। हम लोगों को ऐसा वेट पैड की जरूरत होती नहीं है, विच इज एसेंशियल इन डॉग्स। करेक्ट? ठीक है। So it greatly enhances the function of olfactory system. A sense of olfaction can be increased because it traps the odor particles, right? And that is how it helps in sense of olfaction. Please write this down. Very important information. Very, 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 very important. Point number 1, point number 2, point number 3, point number 4. Please write this down. Make your own study notes. Very important for you. It will help. 10. We should write it above topic. मतलब above the upper lip बेटा। बकल और ओरल कैविटी के अंदर ही लिखा तो भी चलेगा। नाम इंपॉर्टेंट है, फिल्ट्रम। ओके, डन। हो गया। गुड। बहुत सारे लोगों का हो गया। चल आगे बढ़े। सैलरी। ओके चल नेक्स्ट। सो दिस इज फिल्ट्रम। चल अभी बकल कैविटी में जाते हैं। सर मीनिंग वेस्टिजियल मीनिंग इट इज ऑफ नो यूज बट इट वाज अर्लियर यूजफुल मे बी। तो हम लोग एप से आए ना, तो एप्स में ये यूजफुल होता होगा एप लाइक ऑर्गेनिज्म में, और बाद में ये वेस्टिजियल बन गया, मतलब द स्ट्रक्चर विच वाज अर्लियर यूजफुल बट नाउ ऑफ नो यूज, सो दैट्स कॉल्ड एज वेस्टिजियल। सी बेसिकली अमन, वायरल डिसीज आपको है, ये आप कैसे डिसाइड करोगे? करेक्ट। तो वो तो डिसाइड करना पड़ेगा ओनली व्हेन द डॉक्टर चेक्स द बॉडी। तो पहले डॉक्टर क्या बोलता है कि आपको क्या हुआ है, फिर आप बोलते हो कि सर मुझे सर्दी खांसी है। अच्छा उसके साथ और क्या हो रहा है? तो सर मुझे ना गले में दर्द हो रहा है। अच्छा और क्या हो रहा है उसके साथ? तो मुझे ना खांसी आ रही है और फीवर भी है। तो गले में दर्द हो रहा है करके वो थ्रोट चेक करता है ना, तो बोलता है टंग निकालो बाहर, ऐसे चिल्लाओ, और आवाज निकालते तो उनको फेरिंग्स नजर आता है। तो फेरिंग्स में इंफ्लेमेशन है कि नहीं, दैट दे नीड टू ऑब्जर्व। दैट इज व्हाट डॉक्टर्स डू। ठीक है। ओके। हाँ स्नेहा, करेक्ट। सो वेस्टिजियल ऑर्गन लाइक एन अपेंडिक्स, परफेक्ट। सर व्हाई डू टॉन्सिल्स स्वेल? अनन्या, टॉन्सिल्स विल स्वेल बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन। आई विल डिस्कस दैट लेटर, अभी नहीं। टॉन्सिल्स का बाद में डिस्कशन करेंगे। चलो दांत के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं अभी। टीथ वी विल स्टार्ट नाउ। द स्टडी ऑफ टीथ विथ रिस्पेक्ट टू देयर नंबर, अरेंजमेंट एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज डेंटिशन. So the question is, what is dentition? So dentition is nothing but the study of teeth with respect to their number, their arrangement and the development, the way they develop. So we call this as dentition. और human beings में जो dentition होता है उसमें we have different types of teeth. अलग अलग टाइप का टीथ होता है। कौन कौन से different type of teeth are present? तो सबसे पहला आता है incisor, जो फ्रंट में रहता है, उसको हम लोग बनी टीथ ऐसा बोलते हैं। Then comes the canines, जो incisors के just बाजू में रहता है। देन कम्स द प्रीमोलर्स, जो इंसाइजर्स के और थोड़ा बाजू में और पीछे की तरफ होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दी मोलर्स, परफेक्ट बुद्धा। सो दैट इज मोलर्स. सो दीज आर द फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ which we have in our dentition. And because there are four different types of teeth, therefore our arrangement is known as heterodont. हेटेरो मतलब डिफरेंट, डोंट का मीनिंग आता है टीथ। सो द अरेंजमेंट ऑफ द टीथ इन आवर बकल कैविटी इज हेटेरोडोंट। ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, बाद में लिखेंगे। नाउ as I said and as I can see, there are four different types of teeth being present here. सबसे पहला आता है incisors, फिर आता है canine, फिर आता है premolar, and फिर आता है molar. And therefore the arrangement is known as what?
the arrangement is called as heterodont. So how many incisors are there? So as you can see here, two on one side, two on the other side. How many canines are there? Only one canine here and one canine here. How many premolars are there? So premolars are going to be two here. And how many molars are there? So there are three molars. So this is how the dental formula can be written. It is 2 by 2, 1 by 1, 2 by 2 and 3 by 3. ये ऐसा 1 2 by 2 ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है ना, ये बकल कैविटी को ऐसे हाफ में डिवाइड किया है. दिस इज लोअर जॉ और उसके ऊपर रहेगा अपर जॉ. सो ये लोअर जॉ का नंबर ऑफ टीथ है, ये अपर जॉ का नंबर ऑफ टीथ है. व्हाई सर, व्हाई कनाइन इज नॉट फॉर द ह्यूमन? ह्यूमन में कनाइन होता है ना बेटा, एक ही रहता है. लेकिन यस, सो इट इज लाइक दिस. मेरा वीडियो देखो, ये हाफ है तो मैंने आ किया, तो ये एक साइड अपर जॉ का और ये एक साइड लोअर जॉ का, एक ही साइड. ठीक है, दिस वन एक ही साइड पे आप देख सकते हो. सो दिस इज वन साइड. तो नेचुरली ये कितना टोटल कितना आता है देखो, 2 + 2 4 + 1 5 + 3 8 by 8, मतलब टोटल कितना हो गया 16. लेकिन 16 on one side, so naturally 16 will be on the other side, so multiplied by 2, so total teeth कितना हो गया 32. तो 32 दांत होते हैं ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, so total teeth are going to be 32. करेक्ट. सो ये टिपिकल डेंटल फॉर्मूला है हमारा. Now, our dental arrangement is also called as thecodont. You know why thecodont? Where when the teeth are embedded in the jaw. So jaw bone में ऐसा सॉकेट है और ये सॉकेट के अंदर ये टीथ को इस तरीके से एम्बेड किया गया है like this. And as the teeth is embedded in the sockets of a jaw bone, therefore we call this condition as thecodont. Another important terminology. This terminology is important. This terminology is going to be important. एमसीक्यू में इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, सो प्लीज राइट दिस डाउन. हेट्रोडोंट मीनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन वन ऑर्गेनिज्म. थीकोडोंट मतलब different. Thecodont matlab the teeth is embedded in the sockets of a jawbone, so that's called as thecodont. And our teeth dentition is also known as lophodont. Lophodont का meaning आता है teeth with the ridges, just especially premolars and molars. तो अगर आप देखोगे ना यहाँ पे ये, can you see this ridges being present here? Can you see the ridges being present here? तो ये जो ridges आपको दिखते हैं ना, so these ridges are present here, therefore we call this as lophodont. Okay, so this is called as lophodont. So this is the definition of lophodont. So teeth with the ridges. Ridges मतलब edges आते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे भी दिख रहा है, देखो ये जो फोटोग्राफ दिख रहा है आपको, इसमें भी आपको edges दिख रहे हैं. करेक्ट. सो ये हो गया आपका lophodont. Thecodont is this. When the teeth are embedded in a jaw, socket of a jawbone. When the teeth are embedded in a socket of a jawbone, we call that as thecodont. When the teeth will have the ridges, especially premolars and molars, then we call that as lophodont. Okay, हो गया. Sir, then what is the terminology for teeth not embedded in the sockets of a jawbone? So they are basically they do not have a specific name here. So lophodont is basically when it comes to these jaws being present. And yes, so specifically अगर वो उसमें क्या होता है ना, they are developed along with the bones. तो ये bones के साथ ही ऐसे develop होना चालू हो जाते हैं. So they are the part of the bone itself. So we call that as acrodont type of teeth. Okay, so it is known as acrodont. Who has written Shraddha? Perfect, Shraddha. Very nice. Yeah, sir, we can say humans has thecodont, lophodont, yes, and heterodont. हेट्रोडोंट का मीनिंग आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ. देखो ना, चार अलग अलग टाइप का टीथ है ना, इसके लिए हेट्रोडोंट. अच्छा, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें एक ही टाइप का टीथ आता है, जैसे प्रीमोलर्स होते हैं या फिर मोलर्स होते हैं. तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? अगर वो हेट्रोडोंट है तो दे विल बी कॉल्ड एज व्हाट? होमोडोंट. होमोडोंट मतलब सेम टाइप ऑफ टीथ. वेरी गुड श्रद्धा, होमोडोंट. परफेक्ट. करेक्ट. So that's called as the homodont. जैसे फॉर एग्जांपल कार्नी सॉरी हर्बिवोरस एनिमल्स होते हैं, फ्रॉग. फ्रॉग का जो डेंटिशन होता है ना, दैट इज होमोडोंट. एक ही टाइप का टीथ. ठीक है, डन. ये हो गया आपका लिख के. चलो, इसमें और भी अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है,
but we are not going to do it now because it's almost 5:30 now. हमारा time खत्म हो गया है. So I will stop here now for all of you. Thank you very much. Tonsils वाला question next lecture में लेके लेंगे. Priyank, please remind me in the next lecture. What is the meaning of teeth embedded in sockets of a jaw bone? जॉ बोन को ना ऐसा कैविटी रहता है और वो कैविटी के अंदर टीथ ऐसे फिट हो जाता है. इफ यू कैन सी हियर इन द वीडियो, जो मेरा वीडियो दिख रहा है, so that is called as the socket of a jaw bone. ठीक है, चलो, thank you very much guys. God bless you all. Stay home and stay safe. God bless you. Thank you very much. See you. Bye bye. Take care of yourself. बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट इसके लिए रखो. Yes, that's a type of joint. Huh? It's Tisha. Yes, no problem, Tisha. Thank you very much. Bye bye. See you. Take care. God bless you all. Bye. Bye 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 bye. See you. Bye bye. Boy boy. Boy boy. Chalo, I'm ending this meeting. Bye.